ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೇನೆ. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. श्री नरेंद्र मोदी ಅವರಿಗೆ, जेपी नड्डा जी ಅವರಿಗೆ फिर एक बार ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ BY ವಿಜೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ತಾವು ಸಭೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರೂ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರತಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿರವರೇ, ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸತೀಶ್ ಅವರೇ, ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆರವರೇ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಧಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಜಿರವರೇ, ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಯ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರೇ, ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರೇ, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಮೇಶ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ, ದುರ್ಯೋಧನ ಅಯ್ಯವಳೆ ಅವರೇ, ನಿಖಿಲ್ ಕತ್ತಿ ಅವರೇ, ಹನುಮಂತ್ ನಿರಾಣಿ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಗಣ್ಯರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಪತ್ರಿಕಾ ಹಾಗೂ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇನ್ನೇನು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಹಳೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಯಶಸ್ವಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ರಣಕಹಳೆಯನ್ನ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಏನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಈ ದೇಶದ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಎದುರಿಸತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ, NDA ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಯನ್ನ, ಮೋದಿಜಿಯವರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮುಂದಿಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಈ ದೇಶವನ್ನ 2006ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ UPA ಸರ್ಕಾರ ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ UPA ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿತ್ತು, ಯಾವ ರೀತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕಡೆ NDA ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ NDA ಕೂಟ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ, ಈ ದೇಶವನ್ನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿದಂತ INDA ಕೂಟ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶ ಜನರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವಿವತ್ತು ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದೇಶದ ಮುಂದೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಮಾತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಏನು ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಮತಯಾಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕುಂತಲ್ಲಿ ನಿಂತಲ್ಲಿ
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನ ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಂಬಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಹಿಂದೆ 2006ರಿಂದ 2014ರವರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಕೊಡುಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 65,000 ಕೋಟಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ 2014ರಿಂದ 2023ರವರೆಗೆ 2,85,000 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು 1,800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಡಬಲಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸುಮಾರು 15,000 ಕೋಟಿ ಈ ರೈಲ್ವೆ ಡಬಲಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದು ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ, ಮಹಿಳಾ ವಿರೋಧಿ, ಯುವಕರ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳೇ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಹೊಸ ದಾಖಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕಳೆದ 9 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜನಪರ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಕಲ್ಯಾಣದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 8-9 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬರಗಾಲ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಬರಗಾಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇವತ್ತು ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಇತ್ತು, 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇವತ್ತು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 800ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ. ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದೇ ಬೆಳಗಾವಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ರೈತರ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಅವರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು? ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಪರಿಹಾರನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ರಾಜಕಾರಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ 10,000 ಕೋಟಿನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ 30-40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ 2 ಎಕರೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ. ಮೊನ್ನೆ ದಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹಿಂದೂಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 2 ಎಕರೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತನ ಓಲೈಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರವನ್ನ ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮೊನ್ನೆ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗೆದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ
ಏನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಗೆದ್ರು ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅನ್ನುವ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಾವು ನೋಡಿದರೆ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಇವತ್ತು 3 ಜನನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಿಂಚಿತ್ತಾದ್ರೂ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಘೋಷಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಎಂಪಿ, ಅವನ ವಿರುದ್ಧನೂ ಕೂಡ ಅವನು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವನ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಾವಿಲ್ಲೇನು ಕೂತಿದ್ದೀರಿ, ಇವತ್ತು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ 50-60 ದಿನಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ, ನಾನು ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ 28 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶಪಥವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೂ ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, मैं राज्य के अध्यक्ष के नाते मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं, भरोसा देता हूं, कर्नाटक में 28 लोकसभा क्षेत्र जो है 28 का पूरा 28 भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस हम सब मिलके पूरा 100% स्ट्राइक रेट रहेगा. सभी 28 सीट में भारतीय जनता पार्टी और जेडीएस जिता के नरेंद्र मोदी जी को हम कर्नाटक से तोहफा देंगे, ये वादा करता हूं ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯರ್ಥಿನ ಗೆಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿ ಅವರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಅತಿಥಿಯರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆ. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸಂಸದರು, ಅವರ ಜೊತೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು, ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆ.ಪಿ. ನಡ್ಡಾಜಿಯವರ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ವಿನಂತಿ. आप सभा को उद्देशित बात कीजिए. ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಜೋರಾಗಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ, ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರಿಗೆ. बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. आज के इस बूथ सम्मेलन में हमारे चिकोडी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, मंच पर उपस्थित प्रदेश के जुझारू और कर्मशील अध्यक्ष श्री B.Y. विजेंद्र जी, हमारे प्रभारी और राज्यसभा में मेरे साथी राधा मोहन दास अग्रवाल जी, हमारे चिकोडी डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष श्री सतीश जी, लोकसभा में मेरे साथी और आप सबके प्रिय लोकप्रिय सांसद सम्माननीय अन्ना साहब जोले जी, हमारे चिकोडी के लोकसभा के प्रभारी अभय पाटिल जी, हमारी बहन जो एमएलए हैं श्रीमती शशिकला जोले जी, श्री दुर्योधन जी, श्री निखिल कट्टी जी, श्री हरमंत निरानी जी और श्री रमेश कट्टी जी, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में आए हुए
चिकोड़ी लोकसभा के बूथ के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारीगण और सभी BLA 2 और यहां उपस्थित मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, मेरा यह सौभाग्य है कि मुझे आज रानी चेन्नम्मा की पुण्य धरती पर और क्रांतिवीर संगोली रायण्णा के पुण्य भूमि पर, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, ऐसे पुण्य भूमि पर आने का सौभाग्य मिला है। मैं अपनी ओर से नमन करते हुए अपनी बात को शुरू करता हूं। मित्रों, जब हम कर्नाटक की बात करते हैं, कर्नाटक के साथ कन्नड़ की बात करते हैं और कन्नडिगा की बात करते हैं, तो हमें ध्यान में आता है कि यह धरती संस्कृति और विरासत से ओतप्रोत है। संस्कृति, एक ओजस्वी संस्कृति के साथ यह विराजमान है। यहां की संस्कृति, यहां की परंपराएं, यहां की विरासत जो हम सबको मिली है, वो हम सबको गौरवान्वित करती है। यानी हमारा अतीत हमें गौरवान्वित करता है, वहीं कर्नाटक में वर्तमान और भविष्य भी तकनीक और अन्वेषण के साथ जुड़कर भविष्य को देखता है। इसके लिए मैं कर्नाटक की धरती को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मित्रों, आप पार्टी के कार्यकर्ता दिन रात एक करके पार्टी की फौज को मजबूत बनाते हैं, धरती पर जिम्मेवारी को आगे बढ़ाते हैं और जिम्मेवारी से धरती को मजबूत करते हैं। इसके लिए मैं कोटि कोटि अपने कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं, जो जमीन पर लगातार दिन रात मेहनत करके पार्टी को ताकत देते हैं, पार्टी को मजबूती देते हैं और धरती पर जो विचार के विरोधी होते हैं उनको जोड़ने का प्रयास भी करते हैं और उसके साथ साथ जो विरोध होता है उसको सहन करते हुए, आत्मसात करते हुए पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे मजबूत कार्यकर्ताओं को मैं पुनः नमस्कार करता हूं और उनको आदरपूर्वक नमस्कार करता हूं। मित्रों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और मैं मीडिया के माध्यम से भी आपको बताना चाहता हूं कि आप सब लोग बहुत भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली। You all are very lucky and we are also very lucky. Why? Because in the political environment, क्योंकि राजनीतिक दृष्टि से जो लोग कार्य में जुड़े हैं उनको हम ये कह सकते हैं कि जिसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करने का मौका मिला है, वह अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता है कि हम ही एकमात्र पार्टी हैं, हम ही एकमात्र पार्टी हैं जिसे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित हुए। हम ही एक पार्टी हैं जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक प्रतिष्ठान पर खड़े हैं। हम ही एक राजनीतिक दल हैं जिसकी विचारधारा अटल है, जिसकी विचारधारा कभी डिगी नहीं, कभी टली नहीं, कभी हम अपने विचारधारा से अलग नहीं हुए। बाकी सभी राजनीतिक दल आजादी के बाद कोई सोशलिस्ट के नाम से चला था और कैपिटलिस्ट बन गया, कोई कम्युनिस्ट के नाम से चला था वो कैपिटलिस्ट बन गए, कोई अन्य दलों के दृष्टि से विचारधारा को लेकर चले थे, लेकिन वो सब समय रहते रहते बदल गए। पर एक भारतीय जनता पार्टी है जिसने जनसंघ के रूप में
अगर 1951 और 52 में कहा था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं रहेंगे, तो हमने 2020 में 370 धारा को धाराशाही कर दिया। ये हमारी ताकत है। अगर 1996-97 में हमने कहा था कि हम राम मंदिर का बनाने के रास्ते को प्रशस्त करेंगे, तो हमें खुशी है कि 2024 को 20 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के माध्यम से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होती है और हम उस वायदे को पूरा करते हैं। हमने कहा था कि हम एकात्म मानववाद के प्रहरी हैं। हमने एकात्म मानववाद के प्रहरी होने के नाते हमने अंत्योदय चलाया। अंत्योदय के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसको आगे बढ़ाया। और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने ज्ञान की बात की। ज्ञान मतलब गरीब, जी फॉर गरीब, ए फॉर वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर इनकी चिंता हो जाती है, अगर गरीब की चिंता हो जाती है, अगर युवा की चिंता हो जाती है, अगर हमारे किसान भाई की चिंता हो जाती है, अगर हमारी नारी शक्ति की चिंता हो जाती है, तो देश की चिंता हो जाती है, देश की चिंता हो जाती है। यानी जो बात हमने 51-52 में कही, वही बात हम 2024 तक कहते हुए आगे आए। इसलिए हम आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी है। हम अकेली पार्टी है जिसने कहा कि हमारी मुस्लिम बहनों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। किसी कांग्रेस के पार्टी में कोई ताकत नहीं थी कि वो तुष्टीकरण की नीति से बाहर निकल जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी थे जिन्होंने मुस्लिम बहनों को ट्रिपल तलाक, 3 तलाक से आजादी दिलाई और उनको भी मुक्त किया। इस तरीके की हम बात करते हैं। इसलिए हम जहां आइडियोलॉजिकल बेस्ड पार्टी हैं, वहीं आपको खुशी होनी चाहिए। जिस बूथ के आप पहरेदार हो, आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं, 18 करोड़ की पार्टी हैं और हमारे यहां 973 डिस्ट्रिक्ट में हमारी कमेटी है, 1532 ब्लॉक्स में हमारी कमेटी है और लगभग 8 लाख बूथ पर हमारी बूथ की कमेटी है, हमारे बूथ के कार्यकर्ता हैं। 8 लाख, ये हमारी ताकत है। और अगर मैं मास फॉलोइंग की बात करूं, तो आज हमारी पार्टी 303 एमपी हमारे, जिसमें आपके अन्ना साहब जोले जी भी हैं, 303 एमपी हमारे लोकसभा के हैं और हमारे 92 एमपी राज्यसभा में हैं और हमारे 1500 से ज्यादा विधायक हमारे, जिसमें शशिकला जोले जी भी हैं, हमारे 1500 विधायक हैं। हमारे 293 से ज्यादा चेयरमैन हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और मेयर हैं। ये हमारे लोगों की ताकत है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को दुनिया के सामने और देश के लोगों को, हमारे नौजवानों को प्रेरित करके उनको उत्साह के साथ और उनको आत्मनिर्भर के मंत्र के साथ खड़ा किया है। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, हमारे यहां ऐसे नेता भी हुए जिन्होंने लाल किले के प्राचीर से ये कहा कि भारत के लोग आलसी हैं, भारत के लोग दुनिया में बड़े अक्लमंद हैं, हमारे लोग थोड़े अक्ल में कम हैं। यानी उन्होंने भारत के कॉन्फिडेंस को, भारत के जिसे हम कहते हैं कि ताकत को नजरअंदाज करने का काम किया। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के नौजवानों को, भारत के नागरिकों को लाल किले के प्राचीर से विकसित भारत का संकल्प के साथ अपने आप को जोड़ने का उत्साह भी दिया और उत्साह के साथ साथ उनमें यह कॉन्फिडेंस, उनमें यह साहस, उनमें यह आत्मविश्वास
भरने का काम भी किया, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आप कांग्रेस के दिन को याद कीजिए। मैं बार बार बोलता हूं, कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है कमीशन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, निपोटिज्म, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद। ये इन्हीं चीजों से जुड़े हुए हैं। 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी? 10 साल पहले भारत को किस तरीके से देखा जाता था? पॉलिसी पैरालिसिस वाला भारत। भारत को इस तरीके से देखा जाता था जैसे भारत भ्रष्टाचार के साथ निर्णय न लेने वाला भारत, और इसके साथ साथ एक तरीके से आत्मविश्वास खो देने वाला भारत 2014 के पहले था। और 2014 के बाद मोदी जी के नेतृत्व में छलांग लगाने वाला भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, दुनिया को दृष्टि देने वाला भारत आज बन गया है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए आज हम कह सकते हैं कि देश में बदलाव है। और बदलाव किस चीज का है? बदलाव है, आज भारत सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ भरा हुआ है। आज भारत विश्वास के साथ, ट्रस्ट के साथ भरा हुआ है। आज भारत वर्क कल्चर के साथ है। आज भारत आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए होड़ में लगा हुआ है और तीव्र गति से आगे चल रहा है। हमारा नारा है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। हमको रिफॉर्म्स लाना है, हमको बदल देना है, और हमको अपने कर्तव्य पर आगे बढ़ करके चलना है। आज भारत, जब मैं चर्चा करता हूं तो हर दिन 2 नए कॉलेज खुलते हैं भारत में। हर हफ्ते में एक यूनिवर्सिटी खुलती है। हर दिन कम से कम 37 से 40 हमारे, जिसको हम कहते हैं ये न्यू स्टार्टअप्स, वो शुरू होते हैं। हर दिन यूपीआई में लगभग 16,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन होता है हर दिन। और हर दिन 3 जन औषधि केंद्र भारत में खुलते हैं। हर दिन 14 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनता है। हर दिन 29 किलोमीटर की सड़क बनती है। और हर दिन 50,000 उज्ज्वला गैस के कनेक्शन आते हैं। हर दिन 75,000 लोग गरीबी की रेखा से बाहर आ जाते हैं। और आज 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ चुके हैं। ये बदलता भारत है। और हर दिन 60,000 लोगों के घरों में हर घर जल, हर घर नल, ये पहुंच जाता है। इस तरीके की परिस्थिति आकर के खड़ी होती है। मित्रों, हम सिर्फ कांग्रेस की बुराई करने के लिए खड़े नहीं हुए। हमने जो अच्छा काम किया है वो भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। आज जब हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की बात करते हैं, 80 करोड़ की जनता को जब हम कहते हैं कि आपको 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल और 1 किलो दाल हर महीने पहुंचाई गई है, तो हम यह भी कहते हैं कि कर्नाटक में 80 करोड़ में 4 करोड़ गरीब लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से जोड़कर उनकी भी सेवा की गई है। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और 4 करोड़ को तो जोड़ा ही गया है, लेकिन 25 करोड़ की जनता को इसी कारण हम गरीबी की रेखा से ऊपर उठा पाए हैं। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर हम किसान सम्मान निधि की बात करें, जो हमने अपने रैयतू भाइयों के लिए किया है, जो हमने किसान भाइयों के लिए किया है, आज 11 करोड़ 78 लाख किसान, जिसमें से 53 लाख किसान कर्नाटक के हैं, उनको प्रति चौथे महीने 2-2 हजार रुपए उनके सीधे खाते में डालने का काम किया और उनको आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। जल जीवन मिशन में लगभग 11 करोड़ लोगों के घरों तक जल से नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और उसी में आपके यहां भी 51 लाख लोगों के घरों में नल लगाए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 4 करोड़ घर बने हैं और 4 करोड़ घर में से 9 लाख जो थे
वो हमारे टाइम में सैंक्शन हुए, और जो पहले सिद्धरामैया की सरकार थी उसने इसको रोकने की कोशिश की। बाद में जब येडियुरप्पा जी आए तब आपको प्रधानमंत्री आवास योजना की घर मिला, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आयुष्मान भारत, जिसमें 11 करोड़ लोगों को गंभीर बीमारी से लड़ने के इलाज के लिए व्यवस्था की गई, वहीं 62 लाख परिवारों को जोड़ने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि कर्नाटक के आर्थिक दृष्टि से 275% ज्यादा एनडीए की सरकार ने कर्नाटक की सरकार को आर्थिक रूप से मदद की है। कितना? 275%। और अगर मैं उसको आंकड़ों में बताऊं तो 5,42,341,000 करोड़ रुपए आपके यानी कर्नाटक के विकास के लिए लगाया गया है। 1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ गरीबों के लिए, जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको ताकत देने के लिए कर्नाटक में खर्च हुआ है। और उसी तरीके से कर्नाटक की पर कैपिटा इनकम को 10 सालों में 69,621 रुपए सालाना बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार, मोदी जी की सरकार ने किया है। 30,000 करोड़ रुपए रेलवे ट्रैक के लिए खर्च हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च हुए हैं। और उसी तरीके से 8,000 करोड़ रुपए बेंगलोर मैसूरू एक्सप्रेस वे के लिए खर्च हुआ है। उसी तरीके से सब अर्बन प्रोजेक्ट के लिए 15,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और बेंगलोर के एयरपोर्ट बनाने में आपको मालूम ही है कि वहां पर एक नया टर्मिनल बना है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। शिवमोगा में नया एयरपोर्ट बना है। और अभी जहां मैं बेलगावी में उतरा हूं, उसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी 2-3 दिनों में शायद आने वाले हैं, और उसका भी नया टर्मिनल बनेगा और उसके भी विकास की नींव रखी जाएगी, उसका भी काम होगा। स्मार्ट सिटी में दावनगिरी, तुमकुरू, हुबली, शिवमोगा, ये सबको जोड़ा गया है। इसलिए विकास के एक नए नए पहलुओं को लेकर के हम आगे बढ़े। मेरा सभी बूथ अध्यक्षों से विनम्र निवेदन है, मेरा सभी BLA 2 से निवेदन है कि आप हर वोटर तक पहुंचिए, हर लाभार्थी तक पहुंचिए, हर घर में पहुंचिए और हर वर्ग तक पहुंचिए। हर समाज के लोगों को आप जोड़िए, हर पंथ के लोगों से जुड़िए और सबका विश्वास हासिल करने का काम कीजिए। ये अगले 100 दिनों में आपने ये तय कर लेना कि कोई भी आपके बूथ का व्यक्ति छूट न जाए, कोई घर न छूट जाए, कोई व्यक्ति न छूट जाए, कोई लाभार्थी न छूट जाए, जहां हम प्रधानमंत्री मोदी जी का संदेश न पहुंचाए। बोलिए, करेंगे ना? करेंगे ना? मैं आवाज से सुनना चाहता हूं, करेंगे ना? हाँ, हर घर तक जाना है, हर लाभार्थी तक जाना है। हम लोगों ने इतना कुछ किया है, आपकी सरकार ने इतना कुछ किया है, उसको बताना है किस तरीके से उन्होंने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक नया विश्वास दिया है, देश को आत्मविश्वास से भरा है, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आगे बढ़ा है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, गरीब, किसान, युवा, इन सबको ताकत दी है, इनको मजबूती प्रदान की है, देश को आगे बढ़ाया है, लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया है। ये सारी बात का संदेश मोदी जी के नाम पर हम सबको देना है। मित्रों, आप सब लोगों ने यहां विधानसभा में बहुत मेहनत की। ये ठीक है कि नतीजे हमारे पक्ष के नहीं आए, लेकिन आपको भी अंदाजा हो गया होगा और कर्नाटक की जनता को भी ध्यान में आया होगा कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है, वह सरकार उनके साथ किस तरीके से धोखा दे रही है, किस तरीके से उनको गुमराह कर रही थी और किस तरीके से उनके हितों पर डाका डाल करके आज अपने हित साधने का काम कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, यहां पर आज अगर फ्री में कुछ मिल रहा है
अगर मुफ्त में कुछ मिल रहा है तो मुफ्त में मिल रहा है तो आतंकवाद मिल रहा है, आतंकवाद का बढ़ावा हो रहा है। हर एक दृष्टि से आतंकवादियों को एक तरीके से प्रश्रय दिया जा रहा है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसका जिक्र हमारे विजेंद्र भाई ने किया, क्या स्थिति आ गई। विधानसभा में नारा लगता है पाकिस्तान जिंदाबाद, कांग्रेस के मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, कांग्रेस के उप मुख्यमंत्री मूक दर्शक होते हैं, चुप्पी साधते हैं। यही कर्नाटक है ना, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस का खड़गे साहब है। उनके बगल में ही बैठने वाला वो सांसद होगा ना जिसके जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। यही कुछ समय पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी आए थे। यही आप राहुल जी भारत को जोड़ रहे हैं ना। जब आपका सांसद जीतता है और जीतने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, आप किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हो? खड़गे जी, आप चुप क्यों हो? देश जानना चाहता है, कर्नाटक की जनता पूछ रही है कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा विधानसभा के अंदर हो, किसी एक एमपी के जीतने पर हो और वो एमपी कांग्रेस पार्टी का हो, मुख्यमंत्री चुप, उप मुख्यमंत्री चुप, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुप, राहुल गांधी जी चुप। क्या आप पाकिस्तान की मदद करने के लिए पैदा हुए हैं? क्या आप पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए पार्टी चला रहे हैं? क्या आप पाकिस्तान के नुमाइंदे हैं भारत में? मैं जानना चाहता हूं, मुझे इसका उत्तर चाहिए। आप बोलते हो एफएसएल रिपोर्ट नहीं आई, प्राइवेट रिपोर्ट आ चुकी है, आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ये पाकिस्तान की भाषा बोलने वाले, आप याद रखिएगा, भारत माता आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आप ध्यान में रखिए। और ये कर्नाटक की जनता भी आपको कभी माफ नहीं करने वाली है, आपसे जवाब मांगेगी। जब खड़गे साहब आए अपने मातृभूमि पर, जन्मभूमि पर, तो आप उनसे पूछिए कि आप किस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले आपके एमपी के साथ खड़े होते हैं। इसका जवाब हमें चाहिए। और आपने देखा होगा, हमारी सरकार रही शांति प्रिय ढंग से चली, सब जगह शांति थी। आज ब्लास्ट होने शुरू हो गए, कैफे में ब्लास्ट होता है, किस तरीके की घटनाएं घटने लगी हैं। और आप आतंकवादियों के प्रति नरम हो। मेरा चार्ज है कि सिद्धरामैया जी, जब आपकी सरकार थी, आपने पीएफआई के लोगों के खिलाफ केस वापस लिए थे। यह दर्ज है कि आपने पीएफआई के केस वापस लिए थे। और यह भारतीय जनता पार्टी एनडीए की मोदी जी की सरकार है जिसने पीएफआई पर बैन लगाया, तो मोदी जी की सरकार ने लगाया। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। यूपीए की सरकार में हर ये भारत जोड़ो यात्रा पर निकले थे या भारत तोड़ो यात्रा पर निकले थे? ये न्याय दिलाने चले हैं या अन्याय करने चले हैं? और उसी तरीके से जो देश विरोधी नारे लगाते हैं जेएनयू में, उसके साथ राहुल जी खड़े होते हैं। ये भी हम सब लोगों ने देखा है। और मुझे बहुत ही दुख भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है कि यहां वो कांग्रेस पार्टी है जिसने राम के अस्तित्व को नकारा। ये भी हमारे बूथ अध्यक्षों ध्यान में रखना। इन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा। इन्होंने कहा राम काल्पनिक है। इन्होंने हर मोड़ पर राम का विरोध किया। प्राण प्रतिष्ठा में भी नहीं गए, दूसरों को भी दूर रखने की कोशिश की। और अब
कर्नाटक में एक कार सेवक पर 31 साल पुराना मुकदमा लेकर उसको भी जेल में डालने का काम किया। ये राम भक्तों पर जिस तरीके से अन्याय कर रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना होगा कि आने वाले समय में कर्नाटक की जनता इसका भरपूर प्रजातांत्रिक तरीके से बदलाव लेगी। मुझे आश्चर्य हुआ कि यहाँ हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगा दिया है, 10% का टैक्स लगा दिया है। विजेंद्र जी, ये सही है? 10% का टैक्स हिंदू मंदिरों पर। ये टैक्स लगाने का काम, ये क्या कहा जा सकता है? और ये पैसे लेकर के तुष्टीकरण की नीति चलाएंगे, ये इस तरीके का काम करेंगे। मित्रों, कांग्रेस के लिए कर्नाटक की सरकार एटीएम बन गई है। ये एटीएम की सरकार है। यहां से पैसा इकट्ठा करो, दिल्ली की झोली में डालो और यहां पर और भ्रष्टाचार करो। जितना भ्रष्टाचार कर सकते हो वो करो। ये आपको बताना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, और आप जाके बूथ पर पूछना, आंगनवाड़ी की बहनों से पूछना, हमारे आशा वर्कर से पूछना, हमें मिड डे मील्स के लिए काम करने वाली बहनों से पूछना कि क्या उनकी जो रेम्यूनरेशन था उसको बढ़ा दिया गया है क्या। आप यहां के गवर्नमेंट एम्प्लॉय से पूछना, आपकी सैलरी बढ़ा दी गई है क्या। और मैं पूछता हूं कि क्या यहां की वैकेंसी भर दी गई है क्या, और क्या आपको ड्रॉट का कंपेंसेशन मिल गया है क्या। ये सारी चीजें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये भ्रष्टाचार से पूरी युक्त सरकार है और ये तुष्टीकरण करने वाली सरकार है। और कांग्रेस पार्टी परिवारवाद की पार्टी है और परिवारवाद के साथ तुष्टीकरण करने वाली पार्टी है। और ये जो इंडियन गठबंधन है, ये इंडियन गठबंधन कुछ नहीं है, ये गठबंधन परिवार का गठबंधन है, ये गठबंधन भ्रष्टाचार का गठबंधन है, ये गठबंधन भ्रष्टाचार से बचने का गठबंधन है। मैं आपके सामने बताऊं, ऊपर जम्मू कश्मीर से शुरू करो और नीचे तक आ जाओ, इनके सब नेता इंडी गठबंधन में किसी न किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। इनके सभी के सभी नेता परिवारवाद में लिप्त हैं। जम्मू कश्मीर में अगर फारूक अब्दुल्ला चिंता करता है तो उमर अब्दुल्ला की चिंता करता है। जम्मू कश्मीर में मुफ्ती साहब चिंता करते थे तो महबूबा मुफ्ती की चिंता करते थे। सुखबीर बादल जी की चिंता प्रकाश सिंह बादल करते रहे। हम अगर कर्नाटक अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव, अखिलेश यादव के बाद डिम्पल यादव। अगर हम बिहार की बात करें, लालू यादव के बाद राबड़ी देवी, राबड़ी देवी के बाद तेज प्रताप, तेज प्रताप के बाद तेजस्वी, तेजस्वी के बाद मीसा। एक ही परिवार। अगर मैं बंगाल की बात करूं तो ममता और उसका भतीजा अभिषेक। अगर मैं केसीआर की बात करूं तो केसीआर, केटीआर, कविता, उनकी बेटी, उनका दामाद। अगर मैं वाईएसआर की बात करूं तो परिवार की पार्टी। अगर मैं सुप्रिया की बात करूं तो वो भी शरद पवार और सुप्रिया परिवार की पार्टी। अगर मैं शिवसेना की बात करूं तो हमारे उद्धव ठाकरे और उसके आदित्य ठाकरे, उसके बेटे, ये सब परिवार की पार्टियां और सब भ्रष्टाचार में। सब पर बोलो, राहुल गांधी बेल पर है कि नहीं है? है कि नहीं है? सोनिया गांधी बेल पर है कि नहीं है? फारूक अब्दुल्ला पर केस चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तेजस्वी पर केस है कि नहीं है? मीसा पर केस है कि नहीं है? लालू यादव पर केस है कि नहीं है? अखिलेश पर केस है कि नहीं है? ममता के मंत्रियों पर केस है कि नहीं है? केसीआर के परिवार पर केस है कि नहीं है? आप बताइए, ये बचा कौन है? ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार बचाने वाले लोग हैं। और ये ऐसा इंडिया अलायंस बना जिसमें से जेडीयू बाहर हो गया, आरएलडी और जेडीयू हमारे साथ आ गए, टीएमसी ने इनको बाय बाय कह दिया। ये इंडिया अलायंस ये भ्रष्टाचार के साथ और परिवारवाद के साथ जुड़ी हुई पार्टी हो गई। इसलिए मित्रों, आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है।
जिसके नेता दुनिया में जाने जाने वाले नरेंद्र मोदी हैं, जिनके नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं और हम सब लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगे। मेरा आपसे निवेदन है कि आप कमल खिलाएंगे और यहां भी कमल खिलेगा। आप सब लोग बूथ पर पूरी ताकत के साथ उतरेंगे, कांग्रेस के लोगों को मुंह तोड़ जवाब देंगे, प्रजातंत्र को मजबूत बनाएंगे और मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार और अब की बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटका। अध्यक्ष जी का धन्यवाद।